Okay, so what we have is two entities, one is student and one is book issued. And what can be the relationship between the two? Student issues a book. So relationship is not a table or an entity, but it is a relationship between two different entities. Yes, इसके खुद के भी कुछ attributes हो सकते हैं. तो you can also save a relationship. आप एक relationship को भी save कर सकते हैं. तो उसको save करने के लिए आपको अलग से एक table बनाना पड़ेगा. लेकिन रिलेशनशिप इज नॉट, जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज रिलेशनशिप इज नॉट अ प्राइमरी एंटिटी. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उसके साथ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव करने के लिए आपको एक टेबल जो है वो बनाना ही पड़ेगा. So I hope this thing has answered your question. So let's have a look if you have any other question. How can we declare the relationship in syntax? Relationship in syntax can be defined using a foreign key relationship. ठीक है, आपको foreign key बनानी पड़ेगी किसी primary table की, and then only the relationship can be set. And if you are asking for a specific syntax for the same, so for that you need to learn how to create you can say primary key and how to create a foreign key. तो उसका भी एक example अभी देख लेते हैं right now. So I am going to share an example with you. For that, let me clear all the drawings. Let us suppose that we have a table called customer table, and on the other side we have a order table. A customer can place an order, so a customer can be given a specific ID like ID. ठीक है, तो ID can be an integer let's say type. जब मैं क्रिएट टेबल कर रहा हूं तो मैंने यहां पर एक ID बनाई दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप. तो उसी तरह से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट द ID. इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कस्टमर ID बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जॉब इज टू क्रिएट द कस्टमर ID एज द प्राइमरी की इन द कस्टमर टेबल. उसको बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, आई विल हैव टू राइट in the main table primary key bracket customer ID. So what happened here is that I have created the primary key customer ID in the customer table. अब अगर इसका रिलेशनशिप मुझे बनाना है ऑर्डर टेबल के साथ, तो आई हैव टू क्रिएट द कस्टमर ID एज द फॉरेन की फॉर द सेकंड टेबल. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर ID व्हाट इज द टाइप, दैट इज इंटीजर. हाउ टू क्रिएट अ फॉरेन की, मैं यहां पर लिखूंगा रेफरेंसेस. कस्टमर ID डेटा टाइप इज इंटीजर, रेफरेंसेस इज द कीवर्ड. अब कौन से टेबल को रेफरेंस देना है, रेफरेंस देना है कस्टमर टेबल को, क्योंकि प्राइमरी की कहां पर पड़ी है, कस्टमर टेबल में. और कस्टमर टेबल की कौन सी एट्रीब्यूट के साथ इसको रेफरेंस लगानी है, कस्टमर ID. सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड वन सिंपल attribute in the customer table and then created it as a primary key, and then in the order tables I created another attribute customer ID और उसको बनाया foreign key of the primary key customer ID of the customer table. So this is it, very simple syntax. अगर आप गूगल करेंगे इसको तो देयर इज नॉट मच कॉम्प्लिकेशन, आपको बड़े आराम से इसका कोड मिल जाएगा. Yes, any other question that you want to ask, you can ask me. Before continuing, if you have any questions to ask, you can ask me.
So I'm still waiting. In case you have any questions, please type that question, or we can start with our new topic. So as no questions are coming, so we are going to start with our lecture. Yesterday, the last topic that we discussed was the degree of relationship. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या था? द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमें ये बताता था कि हाउ मैनी एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप. अगर दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं एक रिलेशनशिप में तो हम लोग उसको बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं. अगर तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हैं तो हम उसको टर्नरी रिलेशन बोलते हैं. एंड इफ मोर देन 3 एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप तो हम उसको एन एरी रिलेशनशिप बोलते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी एंड द कार्डिनैलिटी. अब कनेक्टिविटी और कार्डिनैलिटी क्या बताती है कि व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, then how many entities are connected to how many other entities of the entity set. तो आप ध्यान से देखिए, connectivity is used to define the association between the number of entities in one entity set or the number of attributes within a one entity with the number of entities in the other set via relationship set. तो one to one है, one to many है, कैसे है ये हम लोग देखेंगे. एंड द नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी क्या कहती है कि अगर वन टू मैनी है या मैनी टू वन है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट मैनी. सो कार्डिनैलिटी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस of one entity set that should be associated with instances of other entity set. ठीक है, तो अब हम समझने वाले क्या है कि एक टेबल में से अगर मैं एंटिटीज उठाता हूं तो वो दूसरे टेबल की कितनी एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है. इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. 2 एग्जांपल्स करेंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वन इज एन एम्प्लॉई एंटिटी having a relationship with the department entity. Second can be you can say a teacher जो पढ़ा रहा है different classes को. अब पहले वाले में relationship क्या है? An employee works for whichever department we specify. Then a teacher teaches, वो कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं. तो सबसे पहले ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं, एम्प्लॉय. नाउ हाउ मेनी एम्प्लॉयज कैन वर्क फॉर अ सिंगल डिपार्टमेंट? देयर कैन बी एनी नंबर. फॉर एग्जांपल, if we look at our department, then we have let's say संदीप है, उषा मैडम है, ठीक है, सीमा है, and there are so many people, they all are working in the CSE department. क्या इसके opposite भी true है? That means can and single employee be part of many departments? For example, you can take my case that we have an ODL department and we have a CSE department. So I am working in both the departments. तो इसका मतलब क्या है? There is many to many relationship in the first case. Many to many relationship in the first case. Teacher teaches classes. एक टीचर जो है वो कितनी सारी क्लासेस को पढ़ा रहा है, ये उसका एक रिलेशनशिप है. नेचुरली एक क्लास को मल्टीपल टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं, दैट इज राइट. लेकिन एक सब्जेक्ट अगर एक टीचर क्लास का है तो उसको मल्टीपल टीचर्स नहीं पढ़ा सकते हैं. तो दैट इज काइंड ऑफ मैनी टू वन एंड द फर्स्ट वन इज वन टू वन. ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि कितनी तरह के ये होते हैं और कैसे ये कनेक्टिविटी जो है वो वर्क करती है. सो लेट अस स्टार्ट. कनेक्टिविटी वन टू वन. In this type of
connectivity, single entity from the first entity set can be associated with only the single entity from the second set. अगर आप ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये सिंगल एंटिटी इज कनेक्टेड टू अ सिंगल एंटिटी इन द अदर सेट. इसके अलावा इन दोनों एंटिटीज का किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं है. सिमिलरली दिस एंटिटी इज कनेक्टेड टू दिस एंड दिस entity is connected to this. So what does it show? It shows one-to-one relationship. So this is an easy one. We find a one-to-one relationship is easy to explain and easy to understand. So let's move next. That is one to many. ये जो मैं आपको अभी कुछ examples दे रहा था, they are part of one to many. So here you can see that there is one entity, this is a better example. This is a one entity which is connected to both of these entities. Similarly, this one entity is connected again to multiple entities and this shows the one to many relationship. अभी हम इस पे लिमिट फिक्स नहीं कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड व्हाट विल बी द मिनिमम. अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि दैट देयर कैन बी वन टू मैनी रिलेशनशिप एज वेल. द ऑपोजिट ऑफ द सेम इज कॉल्ड मैनी टू वन रिलेशनशिप. Many to one. So here you see many and they are connected to one. Here you can see it is many and they are connected to one. So this kind of a relationship is called many to one. When the vice versa is also true, vice versa means many to one and one to many, if they both are true in the same relationship, then it is called many to many. I repeat, when one to many and many to one both are true, then it is called many to many. For example, this single entity is connected to these three entities. Okay, the single entity is connected to these three entities and this single entity is connected to these two entities. So this is where it is called the many to many relationship, and it is very common to find many to many relationships. Okay, which is very uncommon to find is one to one relationship. Generally you have many to one, one to many. In certain cases there can be many to many as well. So this is just a theoretical part of it, but now we will move to cardinality. ये क्या था? कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी हमें क्या बताती है? कनेक्टिविटी हमें बताती है कि हाउ विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज, वन टू वन, मैनी टू वन टू मैनी और मैनी टू मैनी. बट कैन वी फिक्स अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दैट विच इज ट्रू, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कार्डिनैलिटी. अब यहाँ पर देखिए, अ प्रोफेसर कैन टीच अ मैक्सिमम ऑफ 4 क्लासेस. I repeat, this shows that a professor can teach the maximum of 4 classes. अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूं तो इसकी डिग्री क्या है? सबसे पहले इसकी डिग्री इज बाइनरी. Why the degree is binary? Because there is 1 and 2. 2 entities are involved. 2 entities involved हैं, so that means this is a binary relationship. Next is, what is the connectivity of the same? The connectivity of the same is one to many. Means one professor can teach n number of subjects in a class. So in different classes or the same classes, that is it. That is one to many. Many to one क्यों नहीं है? Because the same subject cannot be allotted to multiple teachers. इसीलिए यहाँ पर मैनी टू मैनी नहीं है, वन टू मैनी है. नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी क्या कहती है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफाइंड है. दैट मीन्स वन प्रोफेसर कैन टीच अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 क्लासेस एंड each subject or a class can be taught by a maximum of 1 टीचर. सो दैट मीन्स 1 to 1 है और इधर से 1 to 4 है. दिस रिप्रेजेंट्स द कार्डिनैलिटी.
So what is the cardinality? The cardinality is 1:4 and 1:1. 1:1 तो आना ही था because it is one to many relationship, लेकिन यहाँ पर जो many आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 4। अब ये 4 कहाँ से आता है? ये 4 आता है डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट के लिए ये 3 भी हो सकता है, किसी के लिए ये 5 भी हो सकता है। तो ये हमें एक वैल्यू जो होती है वो हमारा कस्टमर हमें बताता है कि दिस इज द लिमिट दैट आई वांट टू सेट, तो हम लोग वो लिमिट सेट कर देते हैं। So I hope that you have understood what is cardinality and what is connectivity. So now it is the time to see how these relationships are actually shown in the ER diagram. Most of it we have already seen. ये symbols वगैरह हमने already देख लिए हैं, लेकिन इनको अब हम लोग revisit करेंगे। तो what is an ER diagram? ER diagram is used to represent an ER model. जो अभी हमने ऊपर मॉडल समझा है उसी मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ER diagram यूज करते हैं। तो let us start with the different symbols. The first one needs no explanation. अगर आप अपने ER मॉडल में किसी एंटिटी को या किसी टेबल को शो करना चाहते हैं तो that can be done with the help of a rectangle. As you can see on the screen, इस एग्जाम्पल के अंदर दो एंटिटीज हैं, वन इज एम्प्लॉय एंटिटी एंड वन इज अ सप्लायर एंटिटी, और दोनों को विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल शो किया गया है। नेक्स्ट इज एक्लिप्स. Eclipse is basically used to show the attributes of entity. ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि रेक्टेंगल यूज किया था, अब हमने एलिप्स यूज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट देयर इज वन एंटिटी। कौन सी एंटिटी है? अगर मुझे देखकर पता करना हो कि एंटिटी कौन सी है, तो द वन विद द रेक्टेंगुलर शेप इज कॉल्ड द एंटिटी। तो इसमें एम्प्लॉइज द एंटिटी और इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एज, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, तो हम लोग और लाइंस के साथ उनको कनेक्ट कर सकते थे। तो नाउ वी हैव सीन द टू सिंबल्स, वन इज फॉर एंटिटी एंड वन इज फॉर एट्रीब्यूट्स। सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ composite attribute. आपको शायद याद होगा, a composite attribute is one which can be broken further into simple attributes. तो इसमें composite attribute कौन सा है? composite attribute वो है जो directly connected है to the entity. तो ये आपकी entity है, इसके साथ directly connected कौन है? name. So name is your composite attribute. Now the composite attribute is further connected to two simple attributes. So this is how we show the concept of composite attributes in an ER diagram. Not much to explain, but please focus on the same. So let's move further down. Next is double ellipse. What is this double ellipse used to? The double ellipse is used to show the multi-valued attributes. For example, name. An employee can have only a single name. An employee cannot have two names. But an employee can have two contact numbers or more than that. So that means a phone number is a multi-valued attribute. What it is a multi-valued attribute. And how we show a multi-valued attribute? With the help of two ellipses. So let's move further down. The next is dashed ellipse. Dashed ellipse is used to show the derived attribute. I already explained to you what is a derived attribute. An attribute whose value can be derived from some other attribute. This is a simple attribute, this is a simple attribute, and this is a simple attribute. But if I want to know the value of age, I can get the value of age from date of birth. So basically, age is a derived attribute.
और इसकी वैल्यू कहाँ से डराइव की जा सकती है? इट्स वैल्यू कैन बी डराइव्ड फ्रॉम द एट्रीब्यूट दैट इज डेट ऑफ बर्थ। और इसको शो कैसे करते हैं? इस डराइव्ड एट्रीब्यूट को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डैश्ड एलिप्स। Let's move further down. We have a diamond shaped box. What is a diamond shaped box? Diamond shaped box is used to show the relationship between the two entities. ये हमने बहुत बार कर लिया है, ठीक है, पर फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर था एम्प्लॉय और यहाँ पर था डिपार्टमेंट, ये दोनों एंटिटीज हैं, तो इसके लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज किया गया है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ डायमंड बॉक्स, ये आप देख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं डायमंड बॉक्स। और डायमंड बॉक्स के अंदर लिखते हैं नेम ऑफ द रिलेशनशिप, जैसे वर्क्स फॉर, एंड देन इन लाइंस के ऊपर हम लोग लिखते हैं व्हाट वी राइट इज द कनेक्टिविटी। What is the connectivity? Connectivity means one to one है, one to many है, many to one है, या many to many है, हम लोग ये बताते हैं। और अगर हमें कार्डिनैलिटी बतानी है तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स में, जैसे 1 to 4। दैट मीन्स वन एम्प्लॉय कैन मैक्सिमम वर्क इन 4 डिपार्टमेंट्स। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर दैट हाउ वी कैन यूज द ER diagram to represent the relationship. So let's go even further. Double rectangle. Rectangle is used to show the entity and double rectangle is used to show the weak entity. मैंने आपको पिछले लेक्चर में पहले ही बता दिया था what is a weak entity. A weak entity is one whose existence depend upon some other entity. तो इस केस में इंस्टॉलमेंट एंटिटी डिपेंड्स अपॉन द एंटिटी लोन, सो द वीक एंटिटी हैज बीन शोन विद द हेल्प ऑफ डबल रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स को कैसे शो किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज अंडरलाइंड एट्रीब्यूट। अंडरलाइंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू शो द प्राइमरी और द यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल। अगर आप स्टूडेंट एंटिटी को देखते हैं तो इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। क्लास इज नॉट यूनिक, नेम इज ऑल्सो नॉट यूनिक, बट द रोल नंबर इज अ यूनिक एंड in our case it is also the primary key. So how we can show the unique or primary key? By underlining the same. आप देख सकते हैं that the roll number has been underlined. So this means this is our unique key. So let's move even further. The next topic we are going to do is generalization and specialization. स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि जब हम लोग एंटिटीज़ को क्रिएट करेंगे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट विल नोन एज जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। मैं इसका आपको एक जनरल लाइफ में एक एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दिस इज़ अ वेरी जनरल टर्म, बहुत ही जनरल सी एक टर्म हो गई है कि मैंने बोला कि आप एक स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी से। इससे कुछ चीज़ें इजी हो जाती हैं रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती है। तो क्या हम इससे एक लेवल नीचे जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि आप यूजी लेवल के स्टूडेंट हैं या पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं। अब जैसे ही मैं हायरार्की में थोड़ा सा नीचे आया हूँ तो थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो क्या हम अब जनरल हैं या स्पेसिफिक हैं? द आंसर इज वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या मैं ये बता सकता हूँ कि आप कौन सी फैकल्टी को बिलोंग करते हैं? द नेक्स्ट लेवल इज कि आप कौन सी फैकल्टी को बिलोंग करते हैं। फैकल्टी क्या होती है? क्या आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं? क्या आप मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं? क्या आप जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं? क्या आप लैंग्वेजेस को बिलोंग करते हैं? एंड सो ऑन, देयर माइट बी अदर डिपार्टमेंट्स लाइक साइंसेज एज वेल।
क्या इसके नीचे भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इंजीनियरिंग से आप डिपार्टमेंट बता सकते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, सीएससी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। क्या इससे भी नीचे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि द स्टूडेंट इज फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट, तो वो सीएससी डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? वो सीओई कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, सीएससी कर रहा है या बीसीए कर रहा है। तो just see the hierarchy. We start from the top and we go towards the bottom. The start top represents more of a generalization, and the bottom shows the specialization. अब ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की एंट्री करना चाहते हैं। बिल्कुल जनरल एंट्री करना चाहते हैं या बहुत स्पेसिफिक लेवल पर जाकर एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि व्हाट इज जनरलाइजेशन एंड व्हाट इज स्पेशलाइजेशन। अगर मैं यहाँ पर एक हायरार्की बना देता हूँ इस तरह से, सो लेट अस सपोज दिस इज इट। तो अगर मैं सबसे पहले नीचे वाले एंटिटीज बनाकर ऊपर की तरफ जाता हूं और इस एंटिटी की तरफ बढ़ता हूं, देन इट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। मीन्स आई एम मूविंग टूवर्ड्स द जनरलाइजेशन। यानी सबसे पहले मैं कौन सी एंटिटीज को आइडेंटिफाई करता हूं जो लोएस्ट लेवल पर है और फिर उनसे ऊपर की तरफ जाता हूं। अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं, यानी सबसे पहले सबसे ऊपर वाली एंटिटी को, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, सबसे पहले कौन सी एंटिटी को आइडेंटिफाई किया था? स्टूडेंट को। और फिर मैं नीचे की तरफ मूव करता हूं, जैसे मैं यहां पर मूव किया था, तो देन दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। So generalization is a kind of bottom to up approach, whereas specialization is top to bottom approach. So I hope the introduction or the introductory part of both the terms, that is generalization and specialization, is clear. Now let's have a look at an example. For example, we have account. Account आपका किसी बैंक में है, इट इज अ वेरी जनरल टर्म। किस तरह का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, दैट इज मोर ऑफ अ स्पेशलाइजेशन। अब अगर मैं पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके इनको ऊपर जाकर अकाउंट्स में तब्दील करता हूं, तो देन दिस इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। ये आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नलाइजेशन? Generalization is a bottom-up approach in which the lower level entities unite to form the higher level entity, and there can be multi-level generalization also. This is the single level generalization. जो हमने एग्जाम्पल दिया था, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मल्टी लेवल जनरलाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज उसमें लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। दैट मीन्स सबसे पहले स्टूडेंट, फिर यूजी पीजी, फिर फैकल्टी, फिर डिपार्टमेंट, फिर प्रोग्राम। दैट मीन्स इट वाज अ मल्टी लेवल जनरलाइजेशन एंड दिस इज अ सिंगल लेवल जनरलाइजेशन. Specialization is completely the opposite of generalization and it is a top down approach, जिसमें हम लोग हायर लेवल एंटिटी से स्टार्ट करते हुए लोअर लेवल एंटिटी की तरफ जाते हैं। जैसे अ स्टूडेंट इज द हाईएस्ट लेवल एंटिटी, एंड व्हाट इज द यू कैन से स्पेशलाइजेशन, वेदर द स्टूडेंट इज अ यूजी लेवल और अ पीजी लेवल। दिस इज अ सिंगल लेवल स्पेशलाइजेशन which can also be converted into a multi-level specialization. The last is aggregation. The last topic of the day is called aggregation. शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि what is an aggregation. Aggregation is basically the relationship between the two entities is considered to be a single entity. I hope it is correct that आपको समझ में आ गया है कि जब हम लोग दो एंटिटीज को कंबाइन करके सिंगल एंटिटी बना देते हैं, देन वी कॉल इट एज अ एग्रीगेशन। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास तीन एंटिटीज हैं, स्टूडेंट,
एक है कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, और एक है कि कितने प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है जो कि स्टूडेंट ले सकता है। अब स्टूडेंट बेसिकली क्या करता है, वो इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी किस चीज़ की करता है कि मुझे कौन से कॉलेज में किस प्रोग्राम को लेना है। तो बेटर यही है कि मैं क्या करता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो दो एंटिटीज़ हैं कॉलेज और प्रोग्राम, इसको कंबाइन करके एक एंटिटी बना देता हूँ। अब स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट होगा तो उसे पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज कौन से प्रोग्राम को ऑफर करता है। एक ही सेट में आ जाएगा। इससे क्या होगा, फास्टर एग्जीक्यूशन होगा। और डिसएडवांटेज क्या है, किसी भी दो एंटिटीज को एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करने से कई बार स्पेस जो है वो हमें ज़्यादा लगती है। सो वेयर इज द एग्रीगेशन? एग्रीगेशन इज हेयर, हेयर इज द एग्रीगेशन। We have combined two entities into a single entity through a relationship called inquiry. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको पढ़कर इसके एग्जाम्पल को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीगेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल एंटिटी। As you can see in here, a college offers the following program and the student can inquire. अब student inquire कैसे करेगा? College and program, they both are aggregated into a single entity. Now these two entities plus this relationship together, they form one entity, and this entity is connected to with the second entity through the relationship inquire. So what is an aggregation? An aggregation is a combination of multiple entities and their relationship to form a single entity. So with this we come to the end of this lecture. uh, in case you have any questions to ask, feel free to ask such questions in the next lecture. There is no need to panic. I'll start the lecture with giving you the option to ask as many questions as possible, but I request everyone to please go through your practical and finish your practicals on time. Thank you.